Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history, chapter 2, writing and city life. My dear student, in this chapter, writing and city life, today we will discuss the two topics. First, the development of writings, and second, the use of writing. This topic is very important and interesting also. My dear student, in this topic we will try to understand that the development of writing in Mesopotamia and how can they use that writings. We have also discussed a very interesting story. This story is related from the writings. This is no doubt to say that this class is for class 11th, and the Mesopotamian civilization was one of the oldest civilization in the worldwide level. So, my dear student, अगर आप राइटिंग की बात करें तो मेसोपोटामिया में आज के करीब 3200 BC के आसपास मेसोपोटामियाई लोगों ने टेबलेट, मिट्टी की टेबलेट जी, क्ले की टेबलेट्स, उन लोगों ने 3.5 सेंटीमीटर या उससे कम इन पट्टिकाओं पर बने संकेत चित्र, उन पट्टिकाओं का प्रयोग किया, उन टेबलेट्स का यूज किया, और इस टेबलेट्स को न केवल उन्होंने लिखने के लिए यूज किया, बल्कि इन टेबलेट्स में अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए एक अच्छे मीडियम के रूप में स्वीकार किया. Dear student, it is very interesting for you to understand that every society have their own language, their own writing skills, their own vocal specialty, and this was also with the Mesopotamian people. सभी लोगों के पास, all societies have the language in which the certain spoken sound. All the societies have a language in which certain spoken sound conveys certain meanings. And this is verbal communication. Writing too is verbal communication, but in different way. When we talk about writing for a script, we mean that spoken sound are represented in the visible sign. It is the very clear-cut instructions that the verbal communication, it is the very important part of the human beings. All the societies have the language in which certain spoken sound, and these sound carry certain meanings. This is the verbal communication. सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिसमें वो किसी भी चीज को प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारित करते हैं, और ध्वनियों को अपना जो वर्ड है, साउंड्स हैं, इनकी अपनी कुछ मीनिंग्स होती है. इसे वर्बल कम्युनिकेशन के रूप में लेते हैं. कहता है कि दीज द स्पोकन साउंड्स कन्वे सर्टेन मीनिंग्स. दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन. राइटिंग टू इज वर्बल कम्युनिकेशन. राइटिंग टू इज आल्सो वर्बल कम्युनिकेशन. और इन्हीं राइटिंग्स की मदद से अगर हम देखें तो हमें मेसोपोटामियन टेबलेट्स को इस संदर्भ में ले सकते हैं. वी कैन इजीली टेक द मेसोपोटामियन टेबलेट्स फॉर दिस पर्पज. Mesopotamian people used. Before 3200 BC, first time when the Mesopotamian people started to write on the clay tablet. The clay tablet that was used by the Mesopotamian to express their view, to express their message through sign, through word, and this is so their mental capability, उनकी दिमागी क्षमता, उनकी बौद्धिक विकास को ये बातें एक्सप्रेस करती है. फर्स्ट टाइम द मेसोपोटामियन टेबलेट्स which was found that belong to 3200 BC, and on that tablet the various type of signs that was mentioned on that tablet
बहुत सारे तरीके से चिन्ह। कह रहा है मेसोपोटामिया में जो टेबलेट्स मिले, इन टेबलेट की जो डेटिंग जाएगी वो आज से करीब 3200 BC, आज से 3200 ईसा पूर्व ये टेबलेट्स मेसोपोटामिया में बने होंगे। लिखा गया होगा उस पर कुछ। इन टेबलेट्स का यूज कैसे किसके लिए किया होगा? व्हाट वाज द पर्पस? एज आई एक्सप्लेन यू दैट द टेबलेट दैट वाज मीडियम टू एक्सप्रेस देयर व्यू इन रिटन फॉर्म, लिखने के रूप में उन्होंने इस टेबलेट का यूज किया होगा। ये टेबलेट्स जब वो इसका यूज कर रहे थे, आई मीन टू से कि डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग्स को ये शो करता है, लिखने की शैली को। कहता है कि जो साइन बने इस पे, जो सिंबल इस पे है, उसमें ऑक्सन, फिश, ब्रेड, लगभग 5000 हमको लिस्ट मिलती है जो वहां के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाले और वहां से बाहर जाने वाले चीजों की रही होगी। ये जो साइन है, जो लिस्ट है, ये उन चीजों को शो करता है जो मेसोपोटामियन टेम्पल्स में रखे गए होंगे, चढ़ाने के लिए लाए गए होंगे। तो यहां पे स्पष्ट लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन की स्थायी हिसाब रखना जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन, एक्सचेंज, वाटरिंग सिस्टम दैट वाज हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वो रखता था महत्वपूर्ण रोल। और तब उन्हें इसकी जरूरत पड़ी होगी कि कैसे इसको हम एक सिस्टमेटिक रूप से रखें, तो उन्होंने टेबलेट का यूज किया होगा और यहीं से लिखने की परंपरा विकसित हुई होगी। अलग अलग समय पे जो अलग अलग चीजें ली जाती थी, एक्सचेंज होती थी, वस्तु विनिमय की जाती थी, उन्हें करने वाले लोग कई तरह के होते थे और इन चीजों को वो रिटन फॉर्म में रखना चाहते थे। We have also discussed the cuneifications. Cuneiform एक कीलाकार अक्षर, जिसमें नुकीला नोकदार वर्ड लिखे जाते थे। If you will see your book, page number 33, then you can easily find what I am saying. There were two pigs. First pig, ox, grain fish, number boards, and cuneiform syllabic sign. This is what I am telling, that this sign, if you will see that this sign, this and this, what is the meaning of these signs? क्या मीनिंग थी इनकी? क्यों ये शो कर रहे थे? क्या एक्सप्रेस करना चाहते थे? मेरे कहने का सेंस इतना है, what I am telling you, that it was the medium to express themselves. The first time when the Mesopotamian people used the writings for which purpose? To क्या करने के लिए? अपने डॉक्यूमेंट्स को एक प्रिजर्व वे में रखने के लिए उन्होंने इसका यूज किया होगा। The first Mesopotamian tablets written around 3200 BC contained the picture-like sign and number. These were about 5000 list of oxen, fish, bread, loaves, etc. ये 5000 जो लिस्ट मिल रहे हैं, किनके? बैल के, मछलियों के, रोटियों के और भी बहुत सारी चीजों के। ये चीजें मंदिरों के लिए लाई जाती नहीं होंगी, मंदिरों में चढ़ाने के लिए लाई जाती होंगी, इनका पूरा डिटेल रखा जाता होगा। साथ ही साथ इन्होंने सेकेंड पर्पज जो यूज किया राइटिंग का, वो ये था कि ये अब ट्रेड के रूप में इसको रखने लगे, व्यापारिक महत्व के रूप में इन चीजों को एक्सप्लेन करने लगे। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग। मैं आपसे वो चीजों के बारे में कह रहा हूं जो आप समझ सकते हैं। कहता है कि द लिस्ट ऑफ गुड्स दैट वर ब्रॉट इनटू द डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ उरुक, a city in the south, clearly writing began when society needed to keep record of the transactions, because in city life transactions occurred at different times and involved the many people and the variety of goods. इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती थी। मेसोपोटामियन wrote on tablet of clay
scribe would weight clay and pat it to a size of could hold the comfortably in one hand. He would carefully smooth on its surface. कहता है कि मेसोपोटामिया के लोग पहले मिट्टी के क्ले को हाथ में लेते थे, हल्के हाथ से उस पर लिखने का काम करते थे, एक क्लियर उसको टेबलेट के रूप में, टेबलेट फॉर्म में, रिटन फॉर्म में उसको तैयार करते थे. I mean to say that, my dear student, it is very clear that the Mesopotamian people, they were first who started to writing. The person, they express their view with the help of the clay tablet. They take clay tablet in one hand and second hand they smooth and write on that. वो उस पर लिखते थे. There were the various signs, various symbols, oxen, fish, wolves, and such type of others. Braids. These are all goods come towards the common people for the temples. मंदिर के लिए लाए जाते रहे, उनकी तरफ से चढ़ावा होता होगा. ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन थी राइटिंग स्किल के डेवलपमेंट की. अब ये कैसे इस टेबलेट को बनाते होंगे? व्हाट वाज द प्रोसेस टू मेक टेबलेट एंड हाउ दे राइट ऑन दैट? कैसे वो उस पर लिखते होंगे? ऑथर क्लियरली इन्फॉर्म अबाउट दैट कि मेसोपोटामियन रोट ऑन टेबलेट ऑफ क्ले. A scribe would weight clay and pat into a size he could hold comfortably in one hand. He would carefully smooth on its surface with a sharp end of reed cut. The obliquely he would press wedge-shaped cuneiform sign on the smoothed surface while it was still moist. And no doubt to say that कि जब तक क्ले क्या होती होगी, गीली रहती होगी, मॉइस्ट रहती होगी, तभी तक उस पर लिखा जा सकता था. लेकिन जैसे इस क्ले को धूप में सुखा लिया जाता था, ये क्ले लिखने के लायक नहीं रहती थी. वॉट एवर मेंशन ऑन द क्ले बिफोर देयर कंडीशन वाज व्हाट मॉइस्ट. आई मीन टू से दैट कि जब वो गीला रहता होगा. आफ्टर ड्राइड टेबलेट the person, they were unable to write on that. So that's why they were very careful that before that they have to mention their all the datas, all the signs, all the symbols. And किन चीजों को कहता है कि अपने लेन देन की चीजों को they keep record the transactions they uses for the table. कह रहा कि अपने रिकॉर्ड्स को, अपने जो ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड्स हैं उनको उस पर रखने के लिए उन्होंने उनका यूज किया होगा. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा कि किस तरीके से वो लोग टेबलेट का यूज करते थे, टेबलेट पे किन किन चीजों को मेंशन करते थे, अपनी किन आवश्यकताओं को वो एक्सप्लेन करने का प्रयास करते थे टेबलेट के माध्यम से. Only why I am discussing all this, because I want to inform you about that on the basis of that they want to express himself. किससे? राइटिंग से, अपने को लेखन से, अपने को लिखित एविडेंस के रूप में रखना चाहते थे. कहता है कि जिस तरीके से, इसलिए मेसोपोटामिया के जब बहुत सारे प्लेसेस के एक्सकवेशन हुए, उत्खनन कराए गए, तो वहां से हजारों की संख्या में इस प्रकार के टेबलेट प्राप्त हुए. और ये टेबलेट्स क्यों बाहर फेंक दिए गए थे? बिकॉज देयर वर नो यूज ऑफ दैट टेबलेट आफ्टर दैट बॉन्ड, दैट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दैट देयर एक्सचेंज के जो नियम थे, जो चीजें थी, अगर उनको मिल चुकी थी तो वो उसको वेस्ट कर देते थे. तो भले ही वो टेबलेट्स फेंक दिए गए, भले ही टेबलेट वेस्ट थे, लेकिन जब उत्खनन में ऐसे टेबलेट्स मिले, वो मिट्टी के बने थे, वो आसानी से अवेलेबल हो गए एक लंबे समय के, तो इससे हमें मेसोपोटामिया के लोगों की लिखने की कला का और लिखने की जो उनकी मेथोडोलॉजी थी उनके बारे में पता चला.
साथ ही साथ हम इस बात से भी अवेयर हुए कि उन लोगों ने, वो पहले लोग थे जिन्होंने लेखन कला का विकास किया, जिन्होंने राइटिंग स्किल्स डेवलप की. My dear student, what I am telling you, I want to inform you about that the Mesopotamian people, they used these tablets for the writings to express their what? Their accounts, their transactions, keep their records, they uses their tablets. ठीक टेबलेट वैसे ही काम करते थे जैसे धातु के टुकड़े, एक बार लिख दिया गया तो वो मिट नहीं सकते, वो एक लंबे समय तक चलते थे. नियर अबाउट 2600 BC जो उनकी राइटिंग स्किल्स थी वो क्यूनस हो गई, क्यूनिफॉर्म मेथड में हो गई. व्हाट इज द क्यूनिफॉर्म? क्यूनिफॉर्म एक लैटिन वर्ड है, क्यूनियस से बना हुआ है. क्यूनियस का मतलब होता है जिसमें नुकीला निकला हो, जिसमें फार्मा बना हो, कोटी हो, जिसका अर्थ आकार से, मतलब नुकीले आकार से बना हो. आई मीन टू से दैट द क्यूनिफॉर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूनस मीनिंग वेज एंड द फार्मा मीनिंग शेप. माय डियर स्टूडेंट, they uses the cuneiform form during 2600 BC. By 2600 BC or so, the letters became cuneiform and the language was Sumerian. Writing was now used not only for keeping records but also for making direction, dictionaries, giving label, validity of land transfer, narrating the deeds of king and announcing the change of king. Known language of Mesopotamia was gradually replaced after 2400 BC by the Akkadian language. The cuneiform writing in the Akkadian language continued in use until the 1st century CE, that is for more than 2000 years. My dear student, यहाँ क्लियर कह रहा है कि ये टेबलेट अब केवल सिर्फ मंदिरों के चढ़ावे के लिए यूज नहीं हुआ, उनके डिटेल्स रखने के लिए, बल्कि केवल व्यापारियों ने इसका यूज नहीं किया अपनी जो ट्रांजैक्शन करते थे उनके लिए, बल्कि अब ये टेबलेट्स राजा के आदेशों को लिखने के लिए भी हुआ. साथ ही साथ डिक्शनरी के रूप में कुछ वर्ड्स को एक साथ रखने में भी हुआ. कानून, राजा के कार्यों का वर्णन, कानून के कुछ नियम्स और फिर आम जनता के लिए कुछ संदेशों को भी निकालने के लिए इन टेबलेट्स का यूज किया गया. तो इस तरीके से मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी जो ज्ञात भाषा है सुमेरियन का स्थान 2400 BC के बाद धीरे धीरे अक्कादी भाषा ने ले लिया, अक्काडियन लैंग्वेज ने ले लिया. और अक्कादी भाषा में किलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चला. How strange. When I taught you about that the Mesopotamian culture, I told you the language of Mesopotamia. Mesopotamia in the southern part, the Sumerian and Akkadians, there were two cultures and two communities lived. The earliest language of Mesopotamia, that was Sumerian language. But we have seen that the Sumerian language that was replaced by Akkadian language, and Akkadian language, their writing skills, they adopted the cuneiform in their writings, cuneiform method, and the Akkadian language was gradually flow on when the 1st century AD, 2000 years, the long distance covered. It was in practice of Mesopotamian people, Akkadian language. तो यहाँ पे एक लंबा इतिहास लेखन कला का हमने देखा. Now we are going to discuss the next topic, use of writing. My dear student, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने लेखन कला का उपयोग किया. कहता है कि अब इनका यूज कहाँ हुआ होगा. हमने बात की कि यूज किस किस पर्पज में हुआ. हमने कहा कि द राइटिंग स्किल्स वाज यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन द डोनेशन एंड गिफ्ट. क्या? कीप रिकॉर्ड for the temples, which type of donation, which type of gifts
temple got in. Similarly, the traders, they accepted, they uses that tablets for their what? अपने जो लेन देन थी उसको रखने के लिए. Gradually we have seen that the scenario that had changed, and they noted down the orders, decisions, and the general instructions of the king. That was also wrote on tablet in Mesopotamia. लेकिन अब धीरे धीरे इसका विकास और बड़े पैमाने पर लगा. The connection between city life, trade, and writing is brought out in long Sumerian epic poem about Anmarkar, one of the earliest ruler of the Uruk in Mesopotamia traditions. Uruk was the city par excellence, often known simply as the city. Anmarkar is associated with the organization of the first trade of the Sumer in the early days. The epic says, trades were not known. Anmarkar wanted lapis lazuli and precious metal for the beautification of city temples, and sent his messenger out to get them from the chief of very distant land called Aratta. The messenger heeded the word of the king. By night he went just by the day. By day he would go by heaven's sun, divine. He had to go up into the mountain range and had to come down out of the mountain range. The people of Susa below the mountains saluted him like tiny mice. 5 mountains range, 6 mountain range, 7 mountain range he crossed. The messenger could not get the chief of Aratta to part with the lapis lazuli or silver. He had to make the long journey back and forth again and again, carrying threats and the promises from the king of Uruk. Ultimately, the messenger grew over a mouth. He got all the message mixed up. Then Anmarkar formed a clay tablet in his hand, and he wrote down the words down. In those days, there had been a writing down on words on clay. Dear student, author want to inform you about the story. This is the mythical story of the Mesopotamia, where the king of the Uruk, name was Anmarkar. Anmarkar was the epic, heroic personality in the Mesopotamian stories. In their stories, Anmarkar came to be known as the heroic person, महान आदमी के रूप में जाना जाता है. This story give you 2 information. First, that trade was started first time during Anmarkar reign. Second, Anmarkar was the first king who uses the writing skill for give their messages. 2 चीजों को इन आधार पर समझने का प्रयास करिए. अनमरकर ने क्या कहा? कहता है कि जो सिटी लाइफ थी, सिटी लाइफ के साथ जो ट्रेड्स थी, जो राइटिंग स्किल्स थी, इन तीनों के बीच संबंधों को यदि जोड़ें, कनेक्शन को देखें, सिटी लाइफ, ट्रेड एंड राइटिंग, तीनों को एक साथ जोड़िए. कहता है उरुक के एक प्राचीन शासक अनमरकर के बारे में सुमेरियन महाकाव्य में कुछ बातें लिखी गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पहली बार मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास अनमरकर के समय हुआ. मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था, ब्यूटीफुल सिटी थी. उरुक में अनमरकर ने अपने कैपिटल में एक मंदिर बनवाने का प्लान किया. मंदिर को सजाने के लिए, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टेम्पल, अनमरकर डिसाइडेड टू कलेक्टेड द प्रीसियस स्टोन एंड मेटल्स, लेपिस lazuli, chasteni, diamond, these type of alls, stones, precious stones and metal also. So that's why he sent the messenger to other country, other territory, that was Aratta. There is no need to explain again that Anmarkar was the mythological hero of the Mesopotamian in the Sumerian culture,
He came to be known as the very important ruler. First time when Armarkar decided that how can we not develop a temple which told my story, and Armarkar decided to what make us temple. उसने एक मंदिर बनवाने की बात सोची, and for the beautification of temple he sent the messenger to collect the various important precious metal and precious stones. His messenger what went the other cities Aratta, वो गया, लेकिन इस दौरान उसने काफी लंबी यात्रा करनी पड़ी। सुमेर के व्यापार की पहली घटना अरमरकर के साथ ही जोड़ी जाती है। ट्रेड, द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ द ट्रेड दैट वाज कनेक्टेड विद द अरमरकर, क्योंकि इस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता है कोई नहीं जानता था। अरमरकर अपने शहर के सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लेपिस लेजली जैसे बहुमूल्य रत्न और धातुएं मंगाना चाहता था, और उस काम के लिए उसने अपने एक मैसेंजर को दूर देश के देश अरट्टा के शासक के पास एक मैसेज के साथ भेजा। दूत ने राजा के मैसेज का, राजा के द्वारा दिए गए आदेश को पालन करते हुए वो लंबी यात्रा के लिए निकला। वो अरट्टा पहुंचने के क्रम में चांद तारों की रोशनी और चांद तारों के सहारे वो आगे बढ़ता गया। कितना अच्छा वर्णन किया, कहता है कि दूत ने राजा के आदेशों को पालन करने के लिए, आई मीन टू से दैट द मैसेंजर heeded the word of king. By night he went just by the star, by a day he would go by heaven's sun divine. He had to go up into mountain range and had to come down of the mountain range. 5 mountain range, 6 mountain range, 7 mountain range he crossed, and the people of Susa who lived below mountain, they salute him like his little mice. कहता है कि जब वो लंबी यात्राएं कर रहा था, 5 पर्वतों, 6 पर्वतों, 6-7 पर्वतों के आगे बढ़ता गया, और इस पर्वतों को ऊपर नीचे चढ़ते समय वो छोटे सूसा के शहर की बात करता है, जहां के लोग उसे सैल्यूट कर रहे थे और देखने में छोटे चूहे की तरह दिख रहे थे। इन लोगों ने उसे सैल्यूट किया, लेकिन कहानी यहां से ट्विस्ट लेती है। कहता है कि दूत अरट्टा के मुखिया से जो लेपिस लेजली और चांदी नहीं ला पाया, सिल्वर मेटल नहीं ला पाया, क्यों? क्योंकि बार बार लंबी यात्रा करने के कारण वो अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अंत में दूत इतना चकरा गया, मतलब जब राजा ने, अरट्टा के शासक ने उसे ये चीजें यदि प्रोवाइड नहीं कराई या वो दूत उसको नहीं ला सका, तो मैसेंजर ऑफ उरुक को किंग ऑफ उरुक ने काफी थ्रेटेंड किया कि तुम राजा को धमकी देना, ऐसे मैसेज करना, वैसे मैसेज करना, इस सारी चीजों से वो डबल माइंडेड हो गया। वो उसका दिमाग वो क्लियर नहीं कर पाया कि राजा का एक्चुअल मैसेज क्या है। और तब क्या किया, राजा अरमरकर ने अपने हाथ से एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर कुछ शब्द लिखे। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। जब लिखी हुई टेबलेट्स को दूत ने अरट्टा के शासक के हाथों में दी, तो उसने उसकी जांच की, उस पर लिखे गए शब्दों को पढ़ा और देखते ही उसकी त्योरिया चढ़ गई। उसने पट्टिका पर नजर गड़ाए रखी। ये स्टोरी कला यहां पे यही स्टोरी आपका बंद करता है। मेरे कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है, माय डियर स्टूडेंट, दैट द मैसेंजर कुड नॉट गेट चीफ अरट्टा टू पार्ट विद लेपिस लेजुली और सिल्वर, एंड ही हैड टू मेक द लॉन्ग जर्नी बैक एंड फोर्थ अगेन एंड अगेन, carrying threats and promises from the king of Uruk. Ultimately, the messenger grew weary of mouth. He got all the message mixed up. Then Armarkar formed a clay tablets in his mind, and he wrote the word down. In those days, there had been no writing down of words on clay. And given the written tablets
The ruler of Aratta examined the clay. The spoken words were nails. His face was frowning. He kept looking at the tablets. This should not be taken as the literal truth, but it can be inferred that the Mesopotamian understanding it was a kinship that organized trade and writings. The poem also tells us that besides being a means of the storing information and the sending messages after, writing was seen as a sign of the superiority of the Mesopotamian urban culture. Dear student, what I told you the story. हम इस स्टोरी को क्या कर सकते हैं? हम इस स्टोरी को समझने का प्रयास कर सकते हैं। हमें जब राजा के जो मैसेज को अरट्टा के शासक ने देखा तो उसकी थ्योरियां चढ़ गई, यहीं पे पोयम खत्म करता है। हम इस पोयम को एक सिंपल रूप में ले सकते हैं। हम इसे पूर्णतः सही तो नहीं मान सकते, लेकिन ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मेसोपोटामिया की जो विचारधारा थी उसके अनुसार सर्वप्रथम राजा ने व्यापार और लेखन कला का विकास किया होगा। लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने के लिए संदेश को दूर दूर तक भेजने का एक महत्वपूर्ण साधन रहा होगा। इससे मेसोपोटामिया की सारी संस्कृति और उसकी उत्कृष्टता की झलक भी मिली होगी। तो इस आधार पे आप उन चीजों को इजीली समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट इट इज द वेरी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, information which was given by the author that first time the Anmarkar who started not only trade but also the writing skills also developed by them when their messenger hodgepodge their messages. The messengers, he was unable to express what their king tell them, so अनमरकर स्टार्टेड टू राइटिंग्स। यहाँ पे अनमरकर ने लिखने की कला को शुरू किया, विकसित किया, और यहीं से लेखन कला के विकास की एक पूरी स्टोरी दिखाई देती है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। मैंने आपसे कहा कि इस तरीके से एक पूरा का पूरा लेखन कला का विकास हमको मेसोपोटामिया में दिखाई देने लगता है। मेसोपोटामिया के इस लेखन कला को समझने के लिए फर्स्ट यू हैव टू minutely observe about the city life of the Mesopotamia. And in the starting of my lecture, what I told you, what I taught you, that the city life, second, that is the important things, the trade, and third, the writings. When you connected each points with each other, आप प्रत्येक को एक के साथ जोड़ेंगे तो आपको राइटिंग और उसकी पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। नो डाउट टू से दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे लेखन कला का विकास दिखाई देता है। और सिटी लाइफ के स्टार्टिंग के साथ ही अनमरकर की स्टोरी हमें लेखन कला के विकास को एग्जैक्टली शो करती है। तो आप इसको आसानी से समझ गए होंगे, आई होप। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। What? I think next topic is the urbanization in southern Mesopotamia. तो आज के लिए इतना ही। Goodbye and take care.